So here we are covering our unit 5 of paper 2 of UGC NET, that is my subject is English, and in this we are covering linguistics most important topics and all the things that is useful for the exam. So this is just the cheat sheet. If you want this you can comment down, I will send you. And let's start and have a quick revision of linguistic unit 5 in the minimum time possible. Okay, so let's start. Starting with the father figures of linguistics, like that is very important to know, and here I have written only the keywords. As you are new to channel, you should know I am only sharing keywords this time of all the units. Like I have shared a research aptitude, teaching aptitude, and now we are having linguistics. Again, in the minimum time possible, I have covered teaching aptitude in like 20 minutes, research aptitude in like 30 minutes, and let's see how minutes do we need to cover the linguistics. So talking about the linguistic, this is the unit that most of you are afraid of, like what's in this, what to read and what to learn, what to remember. I will make you fun to understand that how easy this is. So you just need to learn the keywords. If we're talking about the father figures of linguistics, we have to remember the name of Ferdinand de Saussure, who is the modern linguistics father, and Noam Chomsky, who is one of other father figure of linguistics, who is associated with transformational generative grammar. Now we are discussing the main part from which 2-3 questions are guaranteed. So we have Lang and Parole. सो बेसिकली मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे फर्डिनेंड साहब थे, उन्होंने क्या किया कि हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिया है. इनके 3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. फर्स्ट है लैंग वर्सेस पैरोल, सेकंड इज साइन थ्योरी, एंड थर्ड इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज. अगर हम लैंग वर्सेस पैरोल की बात करें तो लैंग इज जस्ट एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड पैरोल इज जस्ट एक्चुअल स्पीच. तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो कि लैंग इज लाइक लैंग्वेज, a system of language, and parole is like performance, actual speech. If we talk about the sign theory, we have like a sign is made up of signifier and signified, where signifier is a symbol to represent and signified an idea, and a relation is arbitrary. This is the thing that you have to remember. These are the keywords. Then we have a study of language like synchronic and diachronic. Synchronic is like language at one time, and diachronic is language through time. As we are studying how language is evolving through time, that is diachronic, and the other one is synchronic, that like language at one time. Let's move to Chomsky, in which we are having 1-2 questions mostly. So here there are 2 keywords like competence versus performance. So competence is related to internal knowledge and performance is related to actual use. And deep versus surface structure includes deep, that is meaning level, and surface is spoken from. Now talking about the universal grammar, that is innate language ability, that we are having the innate quality. Now we are having the high yield topic, that is School of Linguistics. In School of Linguistics we have structuralism, in which we have to study just the keywords like language as a system, focus on structure not meaning, generative grammar, that is infinite sentences from finite rule, and functionalism, that is language is the social function to connect. अब बात करते हैं फोनेटिक्स की. फोनेटिक्स में हम कभी कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोनेटिक्स अलग है क्या, फोनोलॉजी अलग है तो क्या. तो हम बताते हैं कि फोनेटिक्स क्या है. साउंड्स हैं लाइक फिजिकली, कि हम कोई चीज़ कैसे बोल रहे हैं. फोनोलॉजी इज़ अ साउंड सिस्टम दैट इज़ मेंटली वी हैव. की टर्म्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे फोनीम है, डेट इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड
unit allophone, which is a variant of phoneme, and IP, that is International Phonetic Alphabet. Next we have morpheme, which is the smallest meaningful unit of any word, and syntax is a phrase structure that we see about like sentence patterns. Now discussing about the socio-linguistic, we have dialect, register, code switching. In dialect we have regional variety like and in registered it is सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज कि हम किससे कैसे बात कर रहे हैं, लाइक इनफॉर्मल, फॉर्मल, कैजुअल, पर्सनल, ऑल ऑफ दैट. कोड स्विचिंग इज लाइक मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस. Now we have some least important topics I have mentioned. If you want to study, you can, but these are not that much important, like psycholinguistic, discourse analysis, and stylistics. Psycholinguistic include deep theories, and stylistics sometimes overlap with criticism, all that. Till now we have covered the basic part. Now I have some more concept like core concepts like synchronic, diachronic. I have already described you, like language at one point is synchronic and through time is diachronic. You have to learn by trick. You can also learn by this trick, like synchronic means syn, that is same time, and diachronic is like through time. You can learn by diary, that is by time, like old English to middle English to modern English, we are going through time. Next we have lang versus parole. Next we have lang versus parole. Lang is just the abstract system of language that is social collective and grammar rules in mind. You have to just learn like lang is equal to language system and parole is equal to the actual speech or uses we have, that is the individual act. So the trick will be parole is equal to performance. This is the most important topic that you have to remember. And मतलब ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो आता ही है मतलब मोस्टली. अब कुछ हाई स्कोरिंग हमारे पास लिंग्विस्टिक टर्म्स हैं जो हमको याद रखे जाने हैं, हो सकता है आ जाए. तो फर्स्टली वी हैव पिडजिन, दैट इज मिक्स्ड लैंग्वेज, नो नेटिव स्पीकर, सिंप्लीफाइड ग्रामर यूज्ड फॉर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन. लाइक दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है और उनके बीच में जो भी लैंग्वेज हो रही है वो हम उसे पिडजिन बोल रहे हैं. लाइक अगर हम ट्रिक की बात करें तो हम कह सकते हैं पुअर ग्रामर. क्रोल we have in which we are talking about the developed stage of pidgin, जिसमें नेटिव स्पीकर्स पे प्रेजेंट होंगे और फुल ग्रामर सिस्टम होगा. लाइक यू कैन से क्रियोल इज इक्वल टू कंप्लीट लैंग्वेज. डायलेक्ट की बात करें तो ये किसी न किसी रीजनल या सोशल वैरायटी की बात होगी जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, वोकैब अलग होगी, ग्रामर अलग होगी. लाइक इंग्लिश में हमारे ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है. टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर वी हैव फॉर्मल, इनफॉर्मल, लाइक पर्सनल एंड कैजुअल, intimate. These 5 types of register we are having, in which we are including language according to situation. ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंड से जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी तरह हम किसी अथॉरिटी से बात करेंगे. तो रजिस्टर इज द वे ऑफ स्टाइलिंग आर लैंग्वेज. आइडियोलेक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल लैंग्वेज यूज़ कि कोई कैसे अपने आप में यूज़ कर रहा है, योर ओन स्पीच हैबिट्स. एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ लाइक प्रेस्टीज वेराइटी यूज्ड इन एजुकेशन मीडिया, हर जगह हो रही है यूज़. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश. Code switching is switching between language and dialects. We are talking about idiolect. Idiolect is individual language and dialect is the common language that we are using. Code switching में हम example की बात करें, that is कल एग्ज़ाम में ब्रो टेंशन हो रही है, so that is code switching. Bilingualism we all know, knowing 2 languages. Multilingualism we all know, knowing many languages. इसमें हमारे पास और चीज़ें हैं like language of acquisition and all, and we have to cover that also.
Now talking about the language pedagogy and ELT, we are having language acquisition versus language learning. That's what's the basic difference in between them. Acquisition is just the subconscious natural process in which we try to learn. That is similar to L1 acquisition. See, very simple. हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, so that's the learning. And language acquisition is we are trying to लर्न अनदर लैंग्वेज. हमारी जो मदर टंग है वो हमारी L1 लैंग्वेज हो चुकी है, ठीक है. अब हम कोई दूसरी सेकंड लैंग्वेज करना चाह रहे हैं, सो डेट विल बी लैंग्वेज एक्विजिशन. Next we have first language acquisition theories in which we have behaviorist theory जो B.F. स्किनर ने दी थी. उनका कहना था कि लैंग्वेज इमिटेशन, रिपीटेशन और रेनफोर्समेंट के थ्रू लर्न की जाती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट होता है. और इसका क्रिटिसिज्म भी आया था कि कैन नॉट एक्सप्लेन क्रिएटिवली, ओवर जनरलाइजेशन हो जाता है चीज़ों का. नेक्स्ट वी हैव नेटिविस्ट इनिटिस्ट थ्योरी बाय नोम चोम्स्की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. इन्होंने क्या किया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी, यूनिवर्सल ग्रामर दी थी और बोला था कि चिल्ड्रन जो है वो इनेट कैपेसिटी के साथ बॉर्न होते हैं. कॉग्निटिव थ्योरी बाय जीन पाइगेट. वी हैव लैंग्वेज डेवलप्स अलोंगसाइड कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइक दिस हैव 4 stages: सेंसरी, मोटर, प्री-ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन. और लैंग्वेज क्या करता है, थॉट को रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट वी हैव सोशल इंटरेक्ट थ्योरी बाय लेविगोत्स्की एंड जेरोम ब्रूनर, जिसमें आता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. और ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो बस आई थिंक 20 मिनट्स में कवर किया है हमने, उसमें आप जाके पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड देख सकते हैं. और ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें हैं जो हम लास्ट टाइम पे शेयर कर रहे हैं. सो इन सोशल इंटरेक्ट थ्योरी हमारे पास है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लाइक गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, दैट इज JIDPD. स्कैफोल्डिंग जो बहुत टर्म आता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्पररी सपोर्ट फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर. लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, दैट इज LASS बाय ब्रूनर, जिसमें सोशल इंटरेक्शन हम बता रहे हैं कि कितना क्रूशियल है डेवलपमेंट के लिए. Next we have second language acquisition theories, like first we have Christian Netter model, जिसमें हमको बस याद रखना है कि ये एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस देता है, जिसमें एक्विजिशन डेट इज सबकॉन्शियसली इज नॉट इक्वल टू लर्निंग कॉन्शियसली. मॉनिटर हाइपोथेसिस हमारी है जो कहती है कि लर्नर नॉलेज एज एडिटर या मॉनिटर की तरह काम करता है. और नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस होती है इन विच ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एक्वायर्ड इन अ प्रेडिक्टेबल ऑर्डर. इनपुट हाइपोथेसिस होती है लाइक कंप्रेंसिबल इनपुट like I+1 need for acquisition, and affective filter hypothesis in which emotional factors affect acquisition. like हम कोई नई लैंग्वेज याद कर रहे हैं तो हमको उसमें मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, या फिर एंग्जाइटी है, या फिर हमारा इनर फियर है, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस. नाउ Slinker's interlanguage theory, in which interlanguage we are discussing like learners developing system between L1 and L2. L1 is the basic language we all know, we all innate in ourselves like our mother tongue, and L2 is the acquired one, we are trying to acquire. ये डायनेमिक है, सिस्टमेटिक है, रूल गवर्न है, इसमें फॉसिलाइजेशन है लाइक परमानेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट फॉर्म्स. कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस हाइपोथेसिस की बात करें तो ये कंपेयर L1 L2 स्ट्रक्चर. एरर एनालिसिस की बात करें तो स्टडी ऑफ लर्नर्स एरर टू अंडरस्टैंड एक्विजिशन प्रोसेस, कि वो वहाँ पे एरर कर कहाँ पे रहे हैं. इसके टाइप्स अगर देखें तो इंटरलिंगुअल एंड इंट्रालिंगुअल. इंटरलिंगुअल वी हैव L1 इंटरफेरेंस एंड इंट्रालिंगुअल इज विद इन L2, कि L2 के अंदर क्या मिस्टेक हो रही है, और इंटरलिंगुअल इज लाइक L1 इंटरफेरेंस के साथ क्या मिस्टेक हो रही है. डेवलपमेंटल एरिया शोइंग लर्निंग प्रोसेसेस. नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस, जिस पे आपको बस ऐसे क्विक रिव्यू डालना है. फर्स्ट वी हैव ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM.
हम इसमें रिटन लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लिटरेरी टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज L1 का यूज़ एक्सटेंसिवली कर रहे हैं। इसका लिमिटेशन क्या है कि ये पुअर ओरल कम्युनिकेशन स्किल लाइक है कि हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं किसी चीज़ का। डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम ओनली टारगेट कर रहे हैं L1 लैंग्वेज पे, ओरल कम्युनिकेशन पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं और ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ा रहे हैं। ऑडियो लिंगल मेथड जिसमें ऑडियो भी आ जा रही है, बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, सो यू हैव टू कमेंट डाउन हु इज़ रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें पैटर्न ड्रिल्स हैं, रिपीटिशन है, मेमोराइजेशन है, लैंग्वेज एज अ हैबिट फॉर्मेशन है और मिनिमल एरर टॉलरेंस है। कॉग्निटिव कोड ऑफ लर्निंग अप्रोच की बात करें तो इसमें हमारे पास है रिएक्शन अगेंस्ट ऑडियो लिंगुअलिज्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट रूल्स, लर्नर्स एज एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जिसमें लर्नर्स का ज़्यादा रोल रहता है। नाउ अगेन important one, communicative language teaching, that is CLT, most influential modern approach in which we have communicative competence like Del Hemes, in which we are having linguistic plus social linguistic plus discourse and strategic competence, leading to meaning focused and not form focused criteria. इसमें अगर हम बात करें तो ऑथेंटिक मटेरियल्स, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ हम किसी चीज़ को, इंसान को सिखाएंगे कोई नई लैंग्वेज, तो उसमें इंफॉर्मेशन गैप कम आएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, जिसमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है और लर्नर सेंटर्ड होता है। टास्क बेस्ड में हम कोई ना कोई टास्क दे देंगे, टास्क के थ्रू हम लोगों को सिखाएंगे, लाइक प्री टास्क, देन पोस्ट टास्क स्ट्रक्चर। दिस फॉर्म इमर्जेस फ्रॉम फंक्शन एंड लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल टास्क। कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करें CLIL, तो वो सब्जेक्ट कंटेंट थॉट थ्रू फॉरेन लैंग्वेज, इसमें डुअल फोकस होता है कंटेंट पे भी और लैंग्वेज पे भी। द साइलेंट वे इज़ वन विच इज़ वेरी मच इन आर PYQ। साइलेंट वे को भूल के मत जाना बिल्कुल। साइलेंट वे क्या होता है, जिसमें टीचर साइलेंट रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, स्टूडेंट साइलेंट नहीं रहता, जैसे आप हो वीडियो देखते देखते। इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है, इसमें टीचर साइलेंट रहता है और स्टूडेंट डिस्कवर करता है लैंग्वेज रूल को। इसमें कलर ड्रॉट्स यूज़ कर लेते हैं टीचिंग एड्स की तरह। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स लाइक TPR, इसमें लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्शंस, फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिजिकल एक्शंस। ये कीवर्ड्स हैं, आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं, फिर आप एलिमिनेशन कर पाओगे, समझ रहे हो। देन वी हैव सजेस्टोपीडिया, लाइक जिसमें रिलैक्स्ड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, क्लासिकल म्यूजिक है, आर्ट इन क्लासरूम है, रिड्यूस साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑल ऑफ इट। देन वी हैव नेचुरल अप्रोच लाइक comprehensive input central and delayed प्रोडक्शन। लैंग्वेज और सब स्किल्स की बात करें तो रिसेप्टिव स्किल्स हमारे पास होती हैं, लाइक लिसनिंग, रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं स्पीकिंग, राइटिंग। ये सारी मेरे को ज़रूरत नहीं है ऐसे आपको इन डेप्थ समझाने की, तो आपको अगर मैं कीवर्ड बता रही हूँ ना, तो आप बस ये एक बार रीड आउट करते रहो साथ में, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, प्रोडक्टिव स्किल, स्पीकिंग, राइटिंग। टेस्टिंग एंड असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हम देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि साथ में करते हैं। समेटिव इज़ एंड ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। प्लेसमेंट असाइन अप्रोप्रिएट लेवल। अचीवमेंट लाइक measuring learning outcomes and proficiency is overall language ability। टेस्ट क्वालिटीज़ की बात करें तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च एप्टीट्यूड में कर चुके हैं, तो ये तो दोबारा नहीं करना है, मतलब आपको करना है, मुझे नहीं कराना है। लैंग्वेज इन यूज़ की बात करें, रजिस्टर स्टाइल हम देख चुके हैं, इसके टाइप भी देख चुके हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपका मन कर रहा है तो आप देख लो। ये इनर सर्कल, आउटर सर्कल, एक्सपेंडिंग सर्कल इज लाइक यू जस्ट रीड इट वंस ओनली। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज़ लाइक ESP। ये एक बार देख सकते हो कि एकेडमिक पर्पस के लिए होती है, ऑक्यूपेशनल पर्पस के लिए होती है, बिजनेस इंग्लिश अलग होती है, मेडिकल इंग्लिश अलग होती है, लीगल इंग्लिश अलग होती है। सो दिस नीड्स एनालिसिस विच इज़ वेरी क्रूशियल। एंड लैंग्वेज चेंज एंड वेरिएशन की बात करें तो हिस्टोरिकल चेंज कैसे हुआ है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न या मॉडर्न इंग्लिश में क्या चेंजेस आ रहे हैं, साउंड चेंज क्या आ रहा है, सिमेंटिक चेंज क्या आ रहा है,
uh, Now we are having exam preparation tip, like we are having high weighted topic in front of you of linguistic. If you are thinking of covering this whole unit, you just have to focus on these topics majorly, like phonetics and phonology, morphology, syntax, language acquisition theories, ELT methods, speech act, sense relation, linguistic theories, and all of that. So that's the strategy for success, and best of luck. Keep learning.